Welcome everybody. This is our sixth class in magnetic effect of current chapter for class 10, and this is a bonus class, so this is not for everybody. You can choose it to watch it or skip it. Here I will cover some additional topic is related to your previous topics, like in previously we have discussed force on a current carrying conductor, and in this video we will uh, discuss a additional part of it, that force between two current carrying conductor. Like if we discuss two magnets, then two magnets can attract or repel each other. Similarly, two current carrying conductors can also attract and repel each other, so we will discuss that. We will also discuss electromagnetic induction, and we will if we have some time, then we will also discuss principle of electricity generation using motors, and the principle of rotation using dynamos and those kind of stuff. Now, as usual, if you found these videos any helpful to you, then please consider liking these videos, sharing these videos, and subscribing to my channel, because it helps a lot when you share and subscribe our channel. Our channel gains more attention, and it gets more recommended. With the help of that, we feel more motivated to make such content, and that content is also beneficial for you. So, and it is a zero cost way for you to support us. So do support us, do share this video and subscribe to our channel. With this, let's start today's video and today's topics. So let us move to the screen. These are the snapshots which we have covered till, and you can watch in on all of these in our previous videos. So with this, let's start today's topic. First topic is force between two current carrying conductors. So this is our today's first topic. Now we have already explained to you in previous class that suppose if we have a conductor and there is a current flowing through it, then force on it is given by force is BIL sine theta, or Bill sine theta. Here theta is the angle between L and B, and I and L have same direction. So from this we can find out force on current carrying conductor. Now we have already studied, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, और उससे आप करंट पास करते हो तो क्या होगा? एक करंट कैरिंग वायर will produce magnetic field. ये हम अपनी फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस में जो हमारे चैप्टर की हैं उनमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे प्रोड्यूस करते हो? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। राइट हैंड थंब रूल में क्या था कि आप अपना राइट हैंड लेते हो, उसका जो थंब है उसको आप करंट की डायरेक्शन में करते हो, और जो आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स के बीच में अपना पेन रखते हो।
उस सिनेरियो में जो आपका पेन है वो करंट की डायरेक्शन और जो थंब है आपको वो भी करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और जो आपकी फिंगर्स हैं जो उसके चारों तरफ रोटेट हो रही हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे ओरिएंटेशन लेगी, कैसे रोटेट होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर आपका करंट ऊपर की तरफ है और आप ऊपर से देख रहे हो, अपने थंब की तरफ से देख रहे हो, तो उस सिचुएशन में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती हुई दिखाई देगी ऊपर से। और यही अगर आप नीचे से देख रहे हो तो नीचे से आपको सेम फील्ड क्लॉकवाइज रोटेट होती हुई दिखाई देगी। सो अगर हम एक सिंपल कंडक्टर लें, सपोज कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट टुवर्ड्स ऊपर की तरफ है, तो जो इसकी फील्ड बनेगी वो क्या होगी, जब आप इसको ऊपर से देख रहे होगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। मींस यहाँ पे फील्ड समथिंग लाइक दिस होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अराउंड जो फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और ये क्लोज कर्व होती है। हम यहाँ पे जस्ट आपको सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए हम आपको इसको क्लोज करके नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए। इस केस में जो फील्ड है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी, और एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होगा और नीचे की तरफ साउथ पोल होगा, बिकॉज जो साउथ पोल होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे लिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए से मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा टॉपिक है वो है दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में हमें फोर्स को चेक करना है कि उनके बीच का फोर्स कैसा होगा। तो हम पहले आपको इसको विद द हेल्प ऑफ जो हमारा रूल है BIL sin थीटा, और हमने इसकी डायरेक्शन भी आपको निकालनी सिखाई थी, उसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, और फिर हम इसको एक मोर सिंपलर वे मैग्नेटिक फील्ड वाली रूल के हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। सो लेट अस डू इट। तो हम क्या करते हैं, हम दो कंडक्टर्स लेते हैं और दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। जब दोनों में करंट फ्लो करेगा तो दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। सो वी हैव टू कंडक्टर्स, और ये दोनों कंडक्टर क्या है, पैरेलल है। सिंपलिसिटी के लिए हम क्या ले रहे हैं, पैरेलल कंडक्टर्स ले रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, हैविंग करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो अभी हम सेम डायरेक्शन वाला केस सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम पहले लेते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर ये हो गया और एक हम दूसरा लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड कंडक्टर है। लेट अस चूज, इसका कलर सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक रेड कंडक्टर है, एक ब्लू कंडक्टर है। दोनों में करंट फ्लो कर रहा है और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मींस अपवर्ड हम करंट दोनों में फ्लो कर रहा है। सो इसमें भी ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अभी हमारा जो फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का, हम क्या करेंगे, पहले की वजह से जो पहला कंडक्टर है इसकी, इससे हम फील्ड निकालेंगे, वो फील्ड सेकंड कंडक्टर पे एक्ट करेगी, और फिर हम उससे सेकंड कंडक्टर पे फोर्स निकालेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोसीजर, और ये हमारा पहला मेथड होगा।
सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम दोनों कंडक्टर से फील्ड्स निकालेंगे, बिकॉज दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों में फील्ड होगी। और फिर हम ये देखेंगे कि वो फील्ड एक दूसरे को कहाँ पे कैंसिल करती है और कहाँ पे एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है, तो उसके बेसिस पे हम सोल्व करेंगे। सो जो आपका फर्स्ट कंडक्टर है इसमें करंट ऊपर की तरफ है, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो इसमें ऊपर से देखने पे जो आपकी फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइंस कैसे रोटेट करेंगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। सो फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसे रोटेट करेगी। और यहाँ हम साइड्स भी डिफाइन कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सो जो हमारा रेड कंडक्टर है या कंडक्टर नंबर ए है और ये हमारा कंडक्टर नंबर बी है। अब एक कंडक्टर के लेफ्ट से फील्ड लाइन आ रही है और उसके राइट में फील्ड लाइंस जा रही है। और ये बाहर लेफ्ट से कैसे आ रही है, लेफ्ट से ये स्क्रीन से आउट हो रही है, मीन्स ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। ये लेफ्ट से स्क्रीन से बाहर आ रही है और राइट से स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लें जिससे कि हमें और इजी हो जाएगा कि जो हमारा ऊपर वाला है इसको हम वाई डायरेक्शन लेते हैं, जो स्क्रीन में जो स्क्रीन का जो वर्टिकल है इसको हम वाई डायरेक्शन लेते हैं, स्क्रीन का जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स लेते हैं, और जो स्क्रीन से आउट डायरेक्शन है इसको हम जेड लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल हम बी यूज करते हैं, बी, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन लेफ्ट साइड में किस डायरेक्शन में है, प्लस जेड डायरेक्शन में है, बिकॉज ये यहाँ पे स्क्रीन से बाहर आ रही है। और राइट साइड में फील्ड किस में है, माइनस जेड डायरेक्शन में है, बिकॉज अब वो राइट साइड में स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो मींस ए के राइट में फील्ड माइनस जेड में है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे इसकी वजह से जो फील्ड होगी, ए की वजह से ऐसे फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, कुछ टाइम के बाद ये फील्ड ऐसे और आगे तक जाएगी और ये फील्ड यहाँ तक भी पहुंचेगी। तो जब ये कंडक्टर पे एक्ट करेगी तो कंडक्टर पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन इसकी ए के राइट में, मींस कंडक्टर पे लगने वाली फील्ड किस में होगी, माइनस जेड डायरेक्शन में होगी। तो कंडक्टर पे हमें फील्ड मिल गई, फील्ड किस पे एक्ट कर रही है, माइनस जेड डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो गई हमारी फील्ड। अब कंडक्टर का जो करंट है, करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो गया हमारा करंट और आई। और आपको ये पता है कि एल एंड आई की डायरेक्शन हम सेम लेते हैं, तो जो हमारा एल है वो आई की डायरेक्शन में होगा और बी हमारा माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे प्लॉट करते हैं ऐसे, दिस इज आवर आई जो कि किस में है, वाई डायरेक्शन में, और इसको आप एल भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा है बी जो कि माइनस जेड डायरेक्शन में। ओके, तो अब हमें डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की। तो हमें ये पता है कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स इज बी आई एल साइन थीटा, और हमने इसको आपको इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला भी बताया था, दैट इज आई एल क्रॉस बी। और यहाँ पे एल और बी के हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड होगी किसकी, फोर्स की। तो अभी हमें जस्ट डायरेक्शन देखनी। तो अभी डायरेक्शन देखने के लिए हम सिर्फ एल और बी पे ध्यान देंगे। जो एल की डायरेक्शन है वो आई की डायरेक्शन के इक्वल है और वो है वाई। ये सिर्फ हम किसके लिए कर रहे हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए कर रहे हैं। और जो बी की डायरेक्शन है वो है माइनस जेड डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन। और इन सब के लिए हमने आपको एक वे बताया था कि आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हो। हमने आपको बताया था कि आपको ऐसे एक्स वाई और जेड राइट करना है और इनको ऐसे क्लॉकवाइज एरो से कनेक्ट कर देना
इस सिनेरियो में क्या होगा, जब आप x से y पे जाओगे, मीन्स x और y का आप क्रॉस करोगे तो आपको z मिलेगा और वो पॉजिटिव होगा। y z का क्रॉस करोगे तो आपको पॉजिटिव x मिलेगा, z x का क्रॉस करोगे तो आपको पॉजिटिव y मिलेगा। बट अगर आप रिवर्स लेते हो तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इस केस में आप क्या कीजिए, नेगेटिव को बाहर निकाल लीजिए, तो ये आपके पास मिलता है y क्रॉस z। ओके, अब आप y और z का क्रॉस करोगे, y और z का क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा x, माइनस बाहर निकाल लेंगे और y z के क्रॉस से आपको मिल जाएगा x, यानी कि जो अभी आपका फोर्स लगेगा वो माइनस x डायरेक्शन में लगेगा। और अगर आप वापस हमारे डायरेक्शंस पे जाते हो तो ये थी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि राइट साइड, तो माइनस x डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट साइड में। तो इस केस में जो आपका फोर्स होगा वो आपको ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर दो कंडक्टर जिनके बीच जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा वन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे हमने एक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब दूसरा क्या है, हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। ये मोर ऑफ इंट्यूटिव है ये वाला एक्सप्लेनेशन। सो ये हमारा रेड कंडक्टर हो गया और ये हो गया ब्लू कंडक्टर। अब हम इनके अराउंड फील्ड बना लेते हैं। बिकॉज दोनों में करंट अपवर्ड्स है तो जो दोनों की फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी ऊपर से देखने की। सो ये पहले कंडक्टर की फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज, और ये दूसरे कंडक्टर की फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप यहाँ दोनों के बीच में आओगे तो पहले कंडक्टर से फील्ड देखोगे आप, ये ऐसे रोटेट कर रही होगी, पहले कंडक्टर से फील्ड ऐसे रोटेट कर रही है और दूसरे से ऐसे रोटेट कर रही है। तो देखोगे आप यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो फील्ड है ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर रही है, कैंसल आउट कर रही है। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि जो बीच वाला रीजन है, ये ये एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, उस लाइन पे जो फील्ड है वो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाती है और जो हमारे पास नेट फील्ड बचती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए फील्ड की डायरेक्शन ये, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ये, तो ये दोनों फील्ड यहाँ पे ऐड होंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ऊपर देखोगे आप तो फील्ड दोनों रिवर्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी। तो ऊपर और नीचे की फील्ड ऐड हो जाती है और बीच वाली फील्ड कैंसिल हो जाती है। तो जो हमारे पास नेट रिजल्टेंट बचता है वो ऐसे बचता है। ये हमारे पास रेड कंडक्टर है और ये हमारे पास ब्लू कंडक्टर। तो जो आपके पास फाइनल फील्ड बचती है वो फील्ड आपके पास फाइनल समथिंग लाइक दिस बचती है। सो हमारी जो फाइनल फील्ड होती है वो कुछ ऐसे बचती है। हम बीच में थोड़ा सा इसको ओवर बेटर वे से बना सकते हैं। सो फाइनल फील्ड आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी, बिकॉज जो यहाँ वाले रीजन में फील्ड थी उसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और हमारे पास ऐसे नेट फील्ड बचती है। और ये देख सकते हो आप कि ऊपर से देखने पे आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देगी। इसके अंदर हम अंदर और भी रीजन बना सकते हैं, ऐसे और भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमने एक ही बनाई है।
तो अभी आप बोलोगे कि सर इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? तो इफेक्ट ये होता है कि जो फील्ड लाइन होती है ना, जो भी फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप आगे जाके और भी टाइप की फील्ड लाइंस पढ़ोगे, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ट्राइज टू रिड्यूस देयर एरिया। ये फील्ड लाइंस हमेशा अपना एरिया कम करने की कोशिश करती है। कौन सा वाला एरिया? जो एरिया ये ले रही है। फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के पास आने की कोशिश करती है, अपना एरिया कम करने की कोशिश करती है। जब ये एक सिंगल कंडक्टर के केस में होती है तो एक कंडक्टर को ये कंप्रेस नहीं कर सकती। ये वायर है, इसको ये दबा नहीं सकती क्योंकि वायर ऑलरेडी सॉलिड मटेरियल है। तो इस केस में सिंगल मटेरियल पे कुछ नहीं कर पाती। बट जब ये फील्ड लाइन दो मटेरियल्स के क्रॉस रोटेट कर रही हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि दोनों मटेरियल्स के बीच में स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। तो ये क्या करती हैं, ट्राई करती हैं, कोशिश करती हैं कि ये एक दोनों को एक दूसरे के पास ले आए ताकि जो स्पेस है ये मिनिमाइज हो जाए। और इसकी वजह से अगर आपके दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में फोर्स करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों ये एक दूसरे के बिल्कुल पास ले आएंगी, पास लेके आने की कोशिश करेंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे के पास लेके आ रही है तो इनमें फोर्स किस टाइप का हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो ये एक सेकंड वे की एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आप बता सकते हो कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे आप फोर्स को, ये करंट को अपोजिट कर देते हो तो यहाँ पे बीच में डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो अगर डायरेक्शन सेम होती है तो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो उनको ऐड होना पड़ेगा, वो एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई वो एक दूसरे को रिपेल भी करने स्टार्ट कर देंगे। तो चाहे आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो या ऊपर जो हमने आपको फोर्स वाले मेथड से एक्सप्लेन किया, आप उस वाले मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे दो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इसके साथ अब हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक है उस पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी आपके लिए एक बोनस टॉपिक है। वो एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट उसके कभी ना कहीं से आपको जरूरत पड़ जाती है। तो उस आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम इसको आपको शॉर्ट में समझाते हैं कि व्हाट इज दिस फिनोमेना, ये फिनोमेना होता क्या है। तो हमने आपको बताया था, हमारा जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि जब चार्ज मोशन करे तो हमें क्या मिलता है? करंट। और करंट से क्या मिलती है हमें? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हो, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे आपको आगे क्या मिलता है? वन टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आगे एक्सप्लेन करेंगे। और अगर क्या रखो आप? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रखो तो आपको क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस ईएमएफ। तो उसमें आपको कंटिन्यूअस ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो और आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? चेंजिंग करंट लगाना पड़ेगा। और जैसे आपको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से क्या मिलता था? तो कांस्टेंट करंट से आपको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और चेंजिंग करंट से आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी।
अब ये तो हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब हम आपको इसका एक्चुअल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि होता है। सो होता ये है कि सपोज कीजिए आपके पास एक कॉइल है या सोलेनॉइड। हम यहाँ पे नॉर्मली सोलेनॉइड का ही एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या कर दिया, सोलेनॉइड के अंदर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक रेजिस्टेंस लगा दिए सो दैट करंट कंट्रोल में रहे। रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू वी है, पोटेंशियल की वैल्यू वी है। तो हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब भी सोलेनॉइड के अंदर से कोई आप करंट फ्लो करवाओगे तो वो किसका बिहेव करती है, मैग्नेटिक, एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। और उससे क्या निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं अभी, जस्ट बेसिक डायग्राम, ठीक। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे निकल के बनती है। नाउ क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम यहाँ पे एक और कॉइल रख दें, और ये कॉइल कैसे हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले वाले कॉइल की, ये इसके अंदर हो, दूसरी कॉइल पहले वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, जैसे अभी आपको ये अंदर नहीं दिख रही। तो जब ये इस कॉइल के अंदर होगी ना तो इसके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट होगा। मीन्स कैसे, हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं या एक अमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। जैसे अभी तो क्या है, ये इस फील्ड से बाहर है तो अभी इसकी रीडिंग क्या आएगी, 0। बट जैसे ही आप क्या करते हो, इसको इस फील्ड के अंदर ले आते हो, ये हम इसको इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले आए, तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपके जो ये रीजन है, जो इतना रीजन ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिससे आपको यहाँ पे रीडिंग मिलती है। इस फिनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको आप एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हो कि जो ये वायर है, अब वायर मेटल की बनी हुई है और मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने आपको बताया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे और वो मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगता है। नाउ किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं फ्री, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। तो अगर आप ऐसे रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो उनके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जब उनके ऊपर फोर्स लगेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, और जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसी को तो करंट बोला जाता है। जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है, करंट। तो यहाँ पे वही होगा कि पहले तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, उनका कोई नेट मोशन नहीं था, बट जैसे ही आपने उनको किस में रखा, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उनपे एक फोर्स लगा, फोर्स की वजह से वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए। और जब वो मूव करने लग गए तो उससे क्या बन गया, करंट। और करंट से आपको यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग मिलेगी या करंट की रीडिंग मिलेगी। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि आपने एक कॉइल के अंदर बैटरी कनेक्ट की, उससे करंट फ्लो करवाया, और उससे दूसरी कॉइल जो कि उससे किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, मीन्स उनके बीच में कोई फिजिकल कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तब भी सेकंड कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो हमारा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है उसमें कॉइल्स को कुछ ऐसे रखा जाता है, यहाँ पे तो हमने आपको ऐसे नॉर्मली रख के दिखाया। जो आपके पास मतलब जो प्रैक्टिकल वे है कॉइल्स को रखने का, वो लाइक दिस है कि हम पहली कॉइल लेते हैं, सपोज हमारी ये पहली कॉइल है, और फिर जो दूसरी कॉइल होती है वो इसी के ऊपर रैप कर दी जाती है लाइक दिस। दूसरी कॉइल का साइज थोड़ा बड़ा ले लिया जाता है, पहली कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल होती है और ऐसे दूसरी कॉइल होती है। पहली कॉइल को आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हो और दूसरी कॉइल में उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। नाउ अब आप लोग बोलोगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है।
और इसका एक और सेकंड केस होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो भी हम आपको शो कर देते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक रोड ली जाती है। ऐसे आपके पास एक रोड ली जाएगी, किसकी, मेटल की। और ये मेटल की जो रोड है, ये आपने एक मेटल की रोड ले ली। ये कोई सॉलिड मेटल की रोड है, जैसे आयरन की या स्टील की। अब आप क्या करते हो, इसके ऊपर दो कोइल्स लगा देते हो। जैसे यहाँ पे आपने पहली कोयल कोयल यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया। इस कोयल को आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हो, और फिर इसके साइड में यहाँ पे दूसरी कोयल लगा देते हो। और यहाँ पे आप इसमें मीटर या वोल्ट मीटर लगा देते हो, जिसमें पहली कॉइल से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे, वो फील्ड दूसरी कॉइल से पास होगी और फिर दूसरी कॉइल में पोटेंशियल जनरेट होगा। तो अभी आपको इसमें ये डाउट आ सकता है कि सर इसमें कॉइल डालने का पर्पज क्या होगा। ये तो हम पहले भी कर रहे थे, और पहले भी सेम काम हो रहा था, यहाँ पे भी सेम काम हो रहा था, यहाँ पे भी सेम काम हो रहा था। तो ये कॉइल डालने का पर्पज क्या हुआ, ये सॉरी ये जो मैग्नेट मेटल की रोड है, ये डालने का फायदा क्या हुआ। तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर में इतनी अच्छी तरीके से मूव नहीं करती एज कंपेयर टू आयरन। आयरन में वो और भी बेटर वे से मूव कर पाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर वे में सेकंड जो कॉइल है उस तक पहुंच पाती है, और उससे यहाँ पे आपको बेटर करंट प्रोडक्शन, बेटर वोल्टेज प्रोडक्शन मिलता है। और इस इफेक्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, हम आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं यूजेस। पहले तो होता है ट्रांसफॉर्मर्स में। ये ट्रांसफॉर्मर कहाँ पे लगे होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक स्टेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का स्टेशन होता है, जहाँ पे मेन पावर ग्रिड से बिजली आती है और फिर जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। बिकॉज जो आपका पावर हाउस होता है या इलेक्ट्रिक स्टेशन होता है, वो नॉर्मली आपको 1000 या 1100 वोल्ट पे सप्लाई देता है, वो आपको 220 वोल्ट पे सप्लाई नहीं देता। फिर ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, ये 1000 वोल्ट टू 220 वोल्ट में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके देते हैं आपको, ताकि आप उसको घरों पे यूज कर सके। ये 1000 वोल्ट पे भेजने का रीजन ये होता है कि आप जितना कम वोल्ट पे भेजते हो उतना ज्यादा पावर का लॉस होता है, जितना ज्यादा वोल्ट पे भेजते हो उतना कम लॉस होता है कंपैरेटिवली। इसलिए जब भी ग्रिड से बिजली आती है तो वो ज्यादा वोल्टेज पे आती है, सो दैट कम से कम लॉसेज हो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का। और जब वो आपके घरों तक पहुंचाना होता है उसको, तो बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है जो उसको 1000 से 220 में कन्वर्ट करता है। अब ये जो कन्वर्जन है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये कन्वर्जन डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सपोज इसमें 5 टर्न्स हैं, इसमें 2 टर्न्स हैं, तो इन नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, बट पावर कांस्टेंट रहेगी, पावर आप चेंज नहीं कर सकते। जो पावर यहाँ पे है, सपोज ये 100 वाट है, तो यहाँ पे भी 100 वाट ही आपको मैक्सिमम मिल सकती है। करंट वोल्टेज को आप चेंज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो इसका सेकंड यूज होता है वो हमारे चार्जर्स में होता है। जो आपके मोबाइल फोन चार्जर होते हैं या लैपटॉप चार्जर होते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो 220 वोल्ट की सप्लाई लेते हैं और उसको 5 वोल्ट या 10 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पे वो किसकी हेल्प से यूज करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर्स का ही यूज करते हैं। और ट्रांसफॉर्मर में कौन सा इफेक्ट यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इफेक्ट ही ट्रांसफॉर्मर्स में यूज किया जाता है। और इससे आपको एक टाइप का इंसुलेशन भी मिलता है। जैसे जो घरों की था एग्जाम्पल था, उसमें आप 1000 वोल्ट को 220 वोल्ट से फिजिकली इंसुलेट कर देते हो। तो 1000 वोल्ट के पास कोई भी वे नहीं है कि वो 220 वाले वोल्ट के सर्किट में पहुंच सके। तो ऐसे आप एक टाइप से इंसुलेशन प्रोवाइड करवा देते हो पूरे सिस्टम को 1000 वोल्ट से।
और ऐसे चार्जर के केस में कि आप 220 वोल्ट को इंसुलेशन दे देते हो 5 वोल्ट से, तो ये एक दूसरे के साथ किसी भी वे में इंटरेक्ट नहीं कर सकती। अगर कोई डैमेज होता है तो सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा, बट 220 वोल्ट यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर्स में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के। अभी हम इस वीडियो का अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपका एक वो भी एक बोनस टॉपिक है, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है और उनकी वर्किंग कैसे होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं बेसिकली क्या होते हैं, सोलेनॉइड्स होते हैं विद सॉफ्ट आयरन कोर। अभी आपको इन दोनों चीजों का मीनिंग समझाते हैं। सोलेनॉइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सोलेनॉइड क्या होती है। ऐसे आपके पास अगर आप मल्टीपल कॉइल्स लें और उनको एक स्प्रिंग शेप में एडजस्ट कर दें तो इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। और जब आप इससे एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हो एंड इससे कोई करंट फ्लो होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आपको दिखाई देती है। तो ये एज ए नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और बिकॉज ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जैसे आप करंट को ऑफ कर दोगे तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसका खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये सोलेनोइड वाला केस पार्ट हो गया। और नाउ सॉफ्ट आयरन कोर, ये वाला क्या हिस्सा होता है। तो सॉफ्ट आयरन क्या होता है कि जो इसका बीच वाला एम्प्टी रीजन है, ये वाला, इसका जो बीच वाला ये एम्प्टी रीजन है, जहाँ पे आपको एक कोयल दिखा रही है, कोयल के बीच में जो एम्प्टी रीजन होता है, यहाँ पे क्या डाल दिया जाता है, सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाता है। सॉफ्ट आयरन की ऐसे एक रोड डाल दी जाती है। वो रोड डालने का रीजन ये होता है कि वो रोड डालने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पहले बाहर के रीजन में स्प्रेड हो रही थी, वो अब इस रोड के थ्रू प्रोपेगेट करती है और ज्यादा कंसंट्रेट होके और ज्यादा मैग्नीफाई होके मूव करती है। तो उससे एक तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते हैं। मींस जब यहाँ से आप करंट फ्लो करवाते हो और यहाँ पे साइकिल्स बनती है, बिकॉज जो आपकी एसी करंट है वो ऐसे साइकिल्स में फ्लो करता है। तो जब भी ये साइकिल्स में फ्लो होता है तो यहाँ पे एनर्जी लॉसेस होते हैं, और जो सॉफ्ट आयरन है उसके एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो इससे हमें डबल बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है, और दूसरा जो हमारे एनर्जी लॉसेस है, उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी लॉसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो हमारा जो मैग्नेट है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। तो ये होता है हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनका बेसिक्स, और आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हो। सो विद दिस हमारा जो बोनस लेक्चर था ये फिनिश होता है। हमारे इस लेक्चर का मीनिंग जस्ट आपको कुछ एडिशनल चीजें प्रोवाइड करवाना था, सो दैट आप जो आपके जो नॉर्मल थ्योरी में कवर नहीं होता वो हम यहाँ पे आपको उसका कुछ बेसिक चीजें कवर करवा सके, ताकि आपको कुछ एडिशनल हेल्प मिल सके। अगर आपको ये हमारी वीडियो, हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, देन प्लीज share this video as much as possible. Like this video. If you have any doubt, then you can comment and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more we get feedback that what we are making is useful to somebody. So आपका फीडबैक ही है जो हमें ये वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर आप हम चाहते हैं कि हम ये वर्क कंटिन्यू करें तो प्लीज हमें अपना फीडबैक दें, लाइक की फॉर्म में, शेयर की फॉर्म में, सब्सक्राइब की फॉर्म में। एंड इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अराउंड एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो कवर करेंगे ही करेंगे, और आपको उनके आंसर्स के साथ एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि कैसे आप उनको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। सो फॉर दैट, उन वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन दबाइए और
सब्सक्राइब का बटन भी हिट कीजिए. With this, we will meet in next video. Till then, keep on watching, keep on studying, and keep on sharing, keep on subscribing. Thanks for watching.